this is Sonali. Once again, welcome back to the Physics Friction of Minds. So friends, this is the platform where we deal with the physics of a 12th board. Okay? So we are talking about the chapter that is mechanical properties of a fluids. We have completed hydrostatics and currently we are discussing surface tension, right? Which is the property shown by the free surface of a liquid. ठीक है? तो इस surface tension का एक last point बचा है, उसका नाम है कैपिलरी एक्शन. सो आज इस लेक्चर में हम सरफेस टेंशन का लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज कैपिलरी एक्शन, एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो नाउ व्हाट इज मीन बाय कैपिलरी एक्शन. ये देखने के पहले सिंपली कैपिलरी मतलब क्या हम ये देखेंगे. ठीक है, सो कैपिलरी ये जो वर्ड है इट अराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिला, और कैपिला का वर्ड वाइज मीनिंग होता है हेयर लाइक. हेयर लाइक. ओके, सो एक कैपिलरी ट्यूब होती है विच इज मेड अप ऑफ अ ग्लास, कांच की ट्यूब होती है विच इज ओपन एट बोथ एंड्स. दोनों एंड से ये ट्यूब ओपन होती है एंड ये ट्यूब, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज अ कैपिलरी ट्यूब बिकॉज दिस इज हैविंग अ डायमेंशन जस्ट लाइक द डायमेंशन ऑफ आवर हेयर. इट्स बोर साइज इज ओनली ऑफ 1 mm. So this is called as a capillary tube. और ये capillary tube में whatever the action is taking place, we call it as a capillary action. Okay, so I just hope now you got the meaning of a word capillary, and now we'll see what is capillary action and how it take place. Okay, so the meaning of word capillary, that's arrived from the Latin word capilla. Capilla means hair like. So one tube is designed having bore size of only 1 mm. Okay, and it's open at both ends. This tube is called as a capillary tube, and whatever action is taking place in this capillary tube is called as a capillary action. तो अब capillary action मतलब क्या ये देखिए. Suppose हमारे पास क्या है, ये कंटेनर है और जिसमें हमने क्या किया, लिक्विड फिल किया है. सो दिस इज लिक्विड. अब लिक्विड भी है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, लिक्विड का नेचर अलग अलग होता है, हमने डिटेल डिस्कस किया है इस पर. ठीक है, सो यहाँ पे सपोज जो लिक्विड हमने यूज़ किया है वो है वाटर. ओके, सो हियर वी हैव यूज्ड अ लिक्विड एंड दैट इज वाटर. ओके, अब जो कैपिलरी ट्यूब के बारे में हमने डिस्कस किया था, सपोज वी हैव डिप्ड दैट कैपिलरी ट्यूब इनसाइड दिस लिक्विड. ठीक है, इस तरह से ये कैपिलरी ट्यूब हमने लिक्विड में डिप की. ठीक है, अब क्या होगा, आपको पता है when liquid comes in contact with the glass, the level of liquid rises at its wall, right? So as soon as you will dip this capillary tube inside the liquid, the level of liquid in the capillary tube rises. ये इस तरह से राइज होती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई, लिक्विड की जो लेवल है कैपिलरी ट्यूब में ये राइज हो गई. ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए. अब देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सपोज आपने क्या किया, सेम कंटेनर लिया बट सपोज आपने लिक्विड चेंज कर दिया. आपने क्या किया, लिक्विड चेंज कर दिया. सो सपोज अब जो लिक्विड आपने लिया वो है मर्क्यूरी, एंड यू नो द डिफरेंस, दिस वेट्स द सॉलिड, दिस डज नॉट वेट्स द सॉलिड. ओके, एंड सपोज अगेन यू डिप्ड अ कैपिलरी ट्यूब इन दिस लिक्विड लाइक अ मर्क्यूरी लाइक दिस. ओके, नाउ अब आपको पता है when such kind of liquid come in contact with a glass, the level of liquid falls down at its wall like this. Okay, so now what will happen, as soon as you will dip this capillary tube in such kind of liquid which does not weight the solid, the level of capillary tube inside liquid lowers down. मतलब ये जो liquid की level इतनी होनी चाहिए थी यहाँ तक, अब ये lower down होके कुछ यहाँ इस तरह से होती like this. Okay, so when we have taken a liquid like a water which weights the solid, we have seen that as soon as we dip this capillary tube inside the water, the level of the water inside the capillary tube has risen, right? But as soon as we dip the same capillary tube in a liquid like a mercury which does not weight the solid, we got to know that the level of a liquid in the capillary tube falls down. Okay, so depends on the liquid, which kind of liquid, which nature of liquid you have. In some liquid the level of capillary or the level of liquid inside the capillary tube is rising. In some liquid the level of liquid inside the capillary tube is falling down. So this particular action of rise or fall inside
कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड एज अ कैपिलरी एक्शन. समझा? सो अब कैपिलरी एक्शन को ही ऑल्टरनेटिवली कहा जाता है कैपिलरिटी. So how will you define this capillarity? It's just the phenomena in which there is a rise or fall of a liquid inside capillary tube, but when this capillary tube is dipped in a liquid is called as a capillarity. कितनी सिंपल डेफिनेशन है. ये एक फिजिकल फिनोमेना है जिसमें एक तो लिक्विड की लेवल राइज होगी या फिर लिक्विड की लेवल फॉल होगी inside the capillary tube, but कब? When you will dip this capillary tube inside this liquid. So depends on the liquid, either the level of liquid will rise or it will fall down, and this particular action of rising or falling of a liquid inside capillary tube is called as capillary action. कितना सिंपल है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो गई कि कैपिलरी मतलब क्या, कैपिलरी ट्यूब मतलब क्या और कैपिलैरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन मतलब क्या. ठीक है. अब बट फिजिक्स इज ऑल अबाउट फाइंडिंग रीजंस दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग. सो आई सेड दैट फॉर अ लिक्विड लाइक अ वाटर द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब राइजेस. फॉर अ लिक्विड लाइक मर्क्यूरी द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी ट्यूब फॉल्स डाउन. राइट, ये मैंने बोला, आपने एक्सेप्ट कर लिया. बट सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही होना चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो ठीक है, बट ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है. अगर इसका रीज़न हमें पता है तो फिर हम ये चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं. राइट. सो अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन. नाउ विल सी एक्सप्लेनेशन फॉर राइज और बोलने से अच्छा एंड दोनों देखना है हमें. राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड inside capillary tube. Okay, so now capillary action में क्या होता है कि लिक्विड की जो लेवल है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, एक तो वो राइज होगी या फिर फॉल होगी, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड. बट ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लिक्विड की लेवल राइज हो रही है, क्यों लिक्विड की लेवल फॉल हो रही है. सो इसका एक्सप्लेनेशन हमें क्या करना है, देखना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर डिस्कस करेंगे राइज के लिए एंड इधर डिस्कस करेंगे फॉल के लिए. ठीक है. ओके, सो क्या करना है, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हमें क्या करना है, एक कंटेनर लेना है इस तरह से. सो दिस इज योर कंटेनर. उस कंटेनर में क्या करना है, हमें लिक्विड फिल करना है. सो सपोज वी हैव पोर अ लिक्विड इन दिस कंटेनर. अब कौन सा लिक्विड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर विच वेट्स द सॉलिड. ओके, अब क्या करना है आपको, कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डिप करना है लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. अब कैपिलरी ट्यूब बहुत थीन होती है, इसका बोर साइज सिर्फ 1 mm होता है, बट यहाँ पे फेनोमेना हमें डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है. सो हमने इसकी जो साइज है थोड़ी बढ़ा के ड्रॉ किया, मतलब जस्ट इमेजिन कि हमने कैपिलरी ट्यूब को क्या कर दिया, जूम करके ड्रॉ कर दिया. ठीक है, तो देखिए ये. अब एक चीज़ पता है कि हम वाटर ले रहे हैं तो ये शेप जो है वो कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, लिक्विड लेवल राइज होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद अ ग्लास लाइक दिस. ठीक है, अब क्या होगा, मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका लिक्विड वाटर होगा तो कैपिलरी राइज होगा, मतलब कैपिलरी ट्यूब के इनसाइड लिक्विड की लेवल क्या होगी, राइज होगी. ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड की लेवल कुछ इस तरह से राइज होगी, बट वो लेवल राइज क्यों हो रही है, वो लेवल फॉल क्यों हो रही है, ये तो हमें एक्सप्लेन करना है ना. तो अभी हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमने कंटेनर ले लिया, हमने कंटेनर में लिक्विड पोर कर दिया लाइक वाटर पोर करने के बाद हमने ये कैपिलरी ट्यूब लिक्विड के अंदर डिप कर दी. ठीक है, डिप करने के बाद कुछ सेकंड्स बाद ये लेवल जो है इस तरह से राइज होगी, बट ये राइज क्यों हो रही है ये हमें एक्सप्लेन करना है. ठीक है, इसके लिए हम ये इमेजिन करेंगे कि ये कंटेनर, उसमें ये लिक्विड पोर किया, उसमें ये कैपिलरी ट्यूब डिप करके हमने क्या कर दिया, इस सिस्टम को पॉज कर दिया, स्टैचू कर दिया, जैसे हम खेलते हैं ना स्टैचू. ओके, सो ये कैपिलरी ट्यूब इस लिक्विड में डिप करने के बाद हमने इस सिस्टम को क्या कर दिया, पॉज कर दिया. मतलब अभी लेवल राइज होने की है, वो कैसे राइज हो रही है, क्यों हो रही है, ये तो हमें देखना है. तो हमने क्या कर दिया, कैपिलरी ट्यूब लिक्विड में डिप कर दी और सिस्टम को पॉज कर दिया. अब हम देखेंगे कि कैसे लेवल राइज होती है, क्यों लेवल राइज होती है. तो देखो, हम यहाँ पे
पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। सपोज ये पॉइंट है ए, अभी फिलहाल लिक्विड लेवल राइज होने का है, तो ये लेवल तो नॉर्मल रहेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जो लिक्विड आपने लिया है वो है प्योर वाटर, और उस केस में आपको पता है कि मेनिस्कस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भूलना नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट कंसिडर करते हैं। ये लेते हैं ए, सपोज दिस इज बी, ओके, सपोज दिस इज सी एंड सपोज दिस इज डी। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जस्ट 4 स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि क्यों लिक्विड की लेवल राइज होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए अभी। अब पर क्या है ये समझने के लिए, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो देखो, हम पहले इस सरफेस की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई सरफेस अगर प्लेन होगा इस तरह से, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक्ट होने वाला प्रेशर और यहाँ से एक्ट होने वाला प्रेशर कैसा है, सेम है, तभी सरफेस कैसा है, प्लेन है। अगर सरफेस ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ का प्रेशर इससे ज़्यादा है। अगर सरफेस ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ का प्रेशर इससे ज़्यादा है, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस है जो सबको पता होता है। अब देखो, ये हमारा प्लेन सरफेस, तो ये हमने प्लेन सरफेस, ये है पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट डी। यहाँ का प्रेशर हम बोलेंगे पीसी, यहाँ का प्रेशर हम बोलेंगे पीडी। दिस इज पीसी, दिस इज पीडी। नाउ द सरफेस इज प्लेन, दैट मीन्स pressure, this pressure will be equals to this pressure and that's why the surface is plane. ये ज़्यादा होता तो ये ऐसे कर्व हो जाता, ये ज़्यादा होता तो ये ऐसे कर्व हो जाता, ठीक है। मतलब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इस प्लेन सरफेस के लिए कैसा है, सेम है। मीन्स व्हाट आई कैन से PC is equals to PD, okay, because this surface is plane. Understood? So ये एक चीज़ आपको पता है। सेकेंडली, अब देखो, ये जो मेनिस्कस है इसका शेप ऐसा है, ये ऐसा कॉनकेव शेप है। यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी। ये सिस्टम मैंने यहाँ ड्रॉ की। ये प्रेशर बोलेंगे PA, ये प्रेशर हम बोलेंगे PP। अब सरफेस प्लेन था तो दोनों प्रेशर सेम थे ये केस के लिए, है ना। अब सरफेस ऐसा क्यों कर्व हुआ, बताओ, ये क्यों कर्व हुआ, इसका मतलब क्लियर है कि ये प्रेशर इससे कैसा है, ज़्यादा है। This pressure will be greater as compared to this. That's why ये जो surface plane था ये ऐसे कर्व हो गया, ये ऐसे बेंड हो गया। मतलब ये केस के लिए ये प्रेशर इससे क्या है, ज़्यादा है। Means I can write this PA. This PA is greater than PD. इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये समझा? ये सरफेस ऐसा कर्व है, ये कॉमन सेंस है कि ये सरफेस ऐसे कर्व हुआ, मतलब यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा तभी ये ऐसे झुक गया, ये ज़्यादा होता तो ये ऐसे झुकता था, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड चीज़। अब थर्ड चीज़, ये देखो, पॉइंट D और पॉइंट B, या फिर हम ये 2 पॉइंट्स की बात करते हैं, C और A। ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। अगर 2 या कितने भी पॉइंट अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे तो हर पॉइंट पे प्रेशर कैसे होता है, सेम होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो देखो, यहाँ का जो प्रेशर है वो है PC, यहाँ का जो प्रेशर है वो है PA। बोथ पॉइंट्स आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड सेकेंडली बोथ पॉइंट्स आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। सो दोनों पे सेम प्रेशर एक्ट होगा और वो प्रेशर कितना होगा, इट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। और इसका रीज़न क्या है, बाय SHL, बिकॉज पॉइंट C एंड पॉइंट A आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अंडरस्टूड? सो ये एक चीज़ हमें पता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे PC इक्वल्स टू PD है और PC इक्वल्स टू PA है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दैट मीन्स वी कैन इक्वेट दिस टू प्रेशर। सो आई कैन राइट PD इक्वल्स टू PA, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ सी यू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, PA इज ग्रेटर देन PB। ध्यान से देखिए, सब एक दूसरे से रिलेट किया है हमने सर। PA इज ग्रेटर देन PB, बट PA इक्वल्स टू क्या है, PD। मतलब इक्वेशन 1 में PA के जगह पे आई कैन राइट PD। सो PD इज ग्रेटर देन व्हाट, PB। ओके, एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। बस हो गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव कर लिया। अब इस पे से देखो कितना सिंपल और कितना इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, सॉरी एक्सप्लेनेशन है। देखो PD क्या है बताओ,
PD है यहाँ का प्रेशर, PB क्या है, PB है यहाँ का प्रेशर। कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। सेम पॉइंट हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, सपोज यहाँ पे पॉइंट E है, यहाँ पे भी दूसरा एक पॉइंट ले लो। मतलब क्या, ये कैपिलरी ट्यूब के इनसाइड जो पॉइंट B है उससे आउटसाइड प्रेशर्स कैसे है, यहाँ का और यहाँ का ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब प्रेशर एट पॉइंट D इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू प्रेशर एट पॉइंट B। अब ये पॉइंट्स पे अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ का जो लिक्विड है वो क्या होगा, ऐसे नीचे दबेगा, वो कॉम्प्रेस्ड होगा, वो प्रेस्ड होगा। वो प्रेस्ड होने की वजह से ये लिक्विड अब क्या करेगा, एक रास्ता ढूंढेगा इधर से बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो प्रेस्ड हो रहा है, वो अंडर प्रेशर है। सी अगेन आई रिपीट, PD इज ग्रेटर देन PB, यहाँ का प्रेशर यहाँ से ज़्यादा है तो यहाँ का लिक्विड, और सिमिलरली यहाँ का लिक्विड क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये लिक्विड नीचे दबेगा। ये लिक्विड ऐसे, ये जो लिक्विड है यहाँ से ऐसे नीचे दबेगा। ये लिक्विड नीचे प्रेस होने की वजह से क्या होगा, अब ये लिक्विड इस तरह से ये ट्यूब में इंसर्ट होगा, और इसके वजह से यहाँ का लिक्विड ट्यूब में इंसर्ट हुआ करके लिक्विड की जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या होगी, राइज होगी। अंडरस्टूड। सो अब क्वेश्चन ये भी है कि लिक्विड की लेवल कहाँ तक राइज होगी। अब जब ये प्रेशर इससे ज़्यादा है करके यहाँ का लिक्विड प्रेस होके यहाँ से ऐसे लिक्विड की लेवल राइज हो रही है, तो ये लिक्विड की लेवल कहाँ तक राइज होगी, जब तक ये जो प्रेशर है PD, ये प्रेशर PB के बराबर नहीं होता। जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तब लिक्विड की लेवल राइज होके स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। अगर 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो दोनों के अक्रॉस प्रेशर कैसा चाहिए, सेम चाहिए, बट सेम नहीं है। यहाँ का प्रेशर इससे ज़्यादा है करके यहाँ का लिक्विड प्रेस होके इधर गया, लेवल राइज हो गई। लेवल राइज होके एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुँच गई। कब तक, जब तक ये दोनों प्रेशर इक्वल नहीं हो जाते। जहाँ पे ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे वहाँ पे लिक्विड लेवल राइज होके स्टॉप हो जाएगी। ओके, मतलब अगर हम अब डायग्राम निकालें तो देखो डायग्राम कैसे होगी। ये आपका कंटेनर, इसमें है ये लिक्विड, ठीक है। ये है आपकी कैपिलरी, ये है इस तरह से। ओके, ये था आपका पॉइंट C, ये था आपका पॉइंट B, ये था आपका पॉइंट B, और अब ये था आपका पॉइंट A। यहाँ पे थी आपकी इनिशियल लिक्विड लेवल। अब यहाँ से प्रेशर लग रहा है तो ये लिक्विड यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, तो लेवल क्या हो गई, राइज होके यहाँ तक हो गई, ठीक है ना। मतलब पॉइंट A जो पहले लिक्विड के ऊपर था, लिक्विड के बाहर था, अब लिक्विड की लेवल राइज हो गई। पॉइंट थोड़े ना चेंज होगा, ये पॉइंट अब लिक्विड के अंदर है, इसका मतलब भी क्लियर है कि लिक्विड की लेवल क्या हो गई, राइज हो गई। ओके, सो इस तरह से लिक्विड की लेवल राइज हो गई। सो ये सिंपल फॉर्मूला ने हमें प्रूफ कर दिया why the level of liquid rises, why the capillary rise is taking place for such kind of liquid like a water. Understood? अब देखो इधर फॉल के लिए डिस्कस करते हैं हम। फॉल मीन्स सपोज you have a liquid like mercury, क्योंकि अभी हमने देखा कि कैपिलरी फॉल कब होता है, जब हम ऐसा लिक्विड लेंगे विच डज नॉट वेट द सॉलिड। तो ये ले लिया हमने मर्क्यूरी, ये है हमारा मर्क्यूरी, ठीक है। इसमें क्या करो, कैपिलरी डिप कर दो, इस तरह से कैपिलरी डिप कर दी, ठीक है। अब आपको पता है कि मर्क्यूरी के केस में लिक्विड की लेवल एट द वॉल्स लोअर डाउन होती है, लाइक दिस। ये चीज़ भूलना नहीं है हमें, ये बहुत की कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेप्थ में जाके कि ऐसा क्यों होता है, ये भी हमने देख चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे लिक्विड की लेवल फॉल डाउन होगी, बट वो क्यों होती है ये हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो फिर से हम वही कंसीडर करेंगे कि हमने कंटेनर ले लिया, उसमें मर्क्यूरी ले लिया, उसमें कैपिलरी ट्यूब डिप कर दी। अब कुछ सेकंड बाद क्या होगी, लिक्विड की जो लेवल है जो यहाँ पे थी इनिशियली वो फॉल डाउन होगी, बट वो क्यों हो रही है ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह कैपिलरी ट्यूब डिप करते से इस सिस्टम को क्या कर देंगे, पॉज कर देंगे, ठीक है। और पॉज करने के बाद अब धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्यों लिक्विड की लेवल लोअर डाउन हो रही है, ठीक है। तो अब देखो कि डिप करते से यहाँ पे शेप कुछ इस तरह से रहेगा मेनिस्कस का, और फिर कुछ सेकंड बाद क्या होगी, ये लिक्विड की लेवल फॉल डाउन हो जाएगी। तो फिर से हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक दिस, सेम फॉलो करना है। एक्चुअली आप खुद भी कर सकते हो डायरेक्ट,
टेक्स्ट बुक में आपको एक ही फॉल के लिए एक्सप्लेन किया है, राइज के लिए आपको करने बोला है, बट विल एक्सप्लेन बोथ द थिंग्स. नाउ सी दिस इज पॉइंट ए, सिमिलरली दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी, दिस इज डी. सिंपल जो कॉन्सेप्ट इधर यूज किए वो इधर यूज करो. ये सरफेस प्लेन है, यहाँ पे पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट डी. सरफेस प्लेन क्यों है, कर्व क्यों नहीं है? सरफेस प्लेन इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर कैसा है, सेम है. अब यहाँ पे है सी, सी का प्रेशर होगा PC, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं PC. यहाँ पे पॉइंट डी, डी का प्रेशर होगा PD. दोनों प्रेशर अगर सेम है ये और ये, तभी तो सरफेस प्लेन है, राइट. अगर एक प्रेशर ज़्यादा होता तो सरफेस कर्व हो जाता, ऐसे या फिर ऐसे, डिपेंड्स. सो मतलब आई कैन राइट PC इक्वल्स टू PD जस्ट लाइक दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अब हम इसकी बात करते हैं. यहाँ पे जो आपका शेप है मेनिस्कस का वो ऐसा है. दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स शेप. अब देखो फिर से वही चीज़ रिपीट है, ये कॉमन सेंस है. अगर दोनों प्रेशर सेम है तो सरफेस ऐसा है. सरफेस ऐसे से ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का प्रेशर इससे ज़्यादा है. अब यहाँ पे है आपका पॉइंट B, यहाँ पे आपका पॉइंट A. ये प्रेशर हो गया PB, ये हो गया PA. भाई ये सरफेस प्लेन था पहले, ये क्यों ऐसे झुक गया? ये प्लेन सरफेस ऐसे क्यों हुआ? मतलब यहाँ से जो ये प्रेशर लग रहा है PB, ये PA से कैसा है, ज़्यादा है. मीन्स आई कैन राइट PB is greater than PA. Let it be equation number 1. So I just hope you got this. Okay, now next again we'll consider this 2 point. This is point C and here point A inside capillary. Okay, now these 2 points are at the same horizontal level. अगर 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं तो उनके अक्रॉस का प्रेशर कैसे होता है, सेम. मीन्स आई कैन राइट PC इक्वल्स टू PA. सो दिस इज PC इक्वल्स टू PA. अंडरस्टूड. अब ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो. PC इक्वल्स टू PD है, PC इक्वल्स टू PD है और PC इक्वल्स टू PA है. लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मीन्स आई कैन इक्वेट दिस प्रेशर with this pressure, right? So what I can write? I can write PD equals to PA and let this be equation number 2. इतना क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे you see observe the equation number 1. Observe equation number 1. Equation number 1 में क्या है? PB is greater than PA. ओके, और इक्वेशन 2 क्या बोलता है? PD equals to PA. तो यहाँ पे PA के जगह पे अपन PD लिख सकते हैं. मीन्स आई कैन राइट PB. 1 implies this PB is greater than PA, but PA equals to कितना है? PD. तो यहाँ पे PA की वैल्यू हम लिख सकते हैं PD. So this is PD. Okay. So let this be equation number 3. अब ये सिंपल सा जो इक्वेशन है ये हमें प्रूफ कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा कि क्यों लिक्विड की लेवल फॉल डाउन हो रही है. देखो क्या हो रहा है. PB B पॉइंट इनसाइड द कैपिलरी, D पॉइंट हियर. यहाँ पे सिमिलरली एक पॉइंट होगा कुछ तो BE जो हमने नहीं कंसिडर किया है बट होगा. अब क्या बोल रहा है ये? PB इज ग्रेटर देन PD. मतलब यहाँ का प्रेशर इससे ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर इससे ज़्यादा है. तो ये पॉइंट तो इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब है. PB इज ग्रेटर देन PD. मतलब प्रेशर एट दिस पॉइंट इज ग्रेटर देन प्रेशर एट दिस पॉइंट. अब अगर यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा? यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये जो लिक्विड है इनसाइड कैपिलरी, ये क्या होगा? ये प्रेस्ड होगा, ये ऐसे नीचे दबेगा और ये नीचे दबने के बाद क्या होगा? इसके पास 2 रास्ते, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा. अब ये वाटर, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है PB करके ये लिक्विड प्रेस हो रहा है. प्रेस होने के बाद कुछ लिक्विड इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा करके ये लेवल राइज हो जाएगी और अंदर की जो लेवल है, यहाँ का लिक्विड तो इधर जा रहा है करके ये लेवल फॉल डाउन हो जाएगी. सिंपल है. मतलब अगर हम न्यू डायग्राम ड्रॉ करें तो अब देखो डायग्राम कैसे होगी. ये हमारा कंटेनर है, ओके, जिसमें हमने क्या फिल किया? मर्क्यूरी. सो दिस इज मर्क्यूरी. ओके, लाइक दिस. ओके, वी हैव डिप्ड दिस कैपिलरी ट्यूब लाइक दिस. ओके, सो दिस इज योर प्लेन सरफेस. दिस इज योर प्लेन सरफेस. ये थी आपकी इनिशियल लेवल कैपिलरी ट्यूब के इनसाइड. ये थी आपकी इनिशियल लिक्विड लेवल. अब क्या हो रहा है? यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ का लिक्विड नीचे प्रेस हो रहा है, दब रहा है करके ये लिक्विड इधर जाएगा, इधर जाएगा करके यहाँ का लिक्विड की जो लेवल है वो क्या हो गई?
फॉल डाउन हो गई और कुछ इस तरह से हो गई। सो सेम यहाँ पे था आपका पॉइंट ए, वो तो एज इट इज रहेगा, ये था पॉइंट सी, ये था पॉइंट डी और ये था पॉइंट बी। ओके, सो सॉरी यहाँ पे जो पॉइंट था ये था आपका बी और ये था आपका पॉइंट डी। तो अब देखो पॉइंट बी जो पहले इनसाइड द लिक्विड था, लिक्विड की लेवल लोअर डाउन हो गई, पॉइंट बी लिक्विड के ऊपर चला गया। अब ये कब तक होगा, मतलब ये जो लिक्विड की लेवल फॉल हो रही है कब तक फॉल होगी, जब तक ये प्रेशर और ये प्रेशर, मतलब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर मीन्स पी बी जब तक पी डी के इक्वल नहीं होता तब तक क्या होगी, लिक्विड की लेवल फॉल डाउन होते रहेगी। क्यों? बिकॉज ये दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने के बाद भी यहाँ का प्रेशर इससे ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं चलता है, फिजिक्स है, फिजिक्स के अपने रूल्स है, सेम पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो प्रेशर तो सेम चाहिए, प्रेशर सेम चाहिए, तो क्या करेगा, यहाँ का लिक्विड प्रेस होकर इधर जाएगा, यहाँ की लेवल फॉल डाउन होगी। कब तक? जब तक ये दोनों प्रेशर इक्वल नहीं हो जाते, और ये दोनों प्रेशर जब इक्वल हो जाएंगे तब तक तो लेवल क्या हो जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से लिक्विड की लेवल फॉल होती है, समझा? तो देखो जस्ट 1 2 3 4 स्टेप में हमने डिराइव कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों लिक्विड की लेवल राइज हो रही है, क्यों फॉल हो रही है, और ये राइज और फॉल किस पे डिपेंड है। दिस इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, दैट विच काइंड ऑफ लिक्विड यू आर यूजिंग। इफ अगेन आई रिपीट, if you are using a liquid which wets the solid, then the level of liquid inside capillary tube rises, and if you are using a liquid like a mercury which does not wet the solid, then the level of liquid inside capillary falls down. Okay, so यहाँ पे capillary rise हो रहा है, यहाँ पे capillary fall हो रहा है। So ये रहा हमारा explanation of capillary rise and fall inside the capillary tube. So friends, capillary action का जो point है, जो concept है, वो आपको समझ में आ गया। capillary action कहाँ कैसे हो रहा है, कौन से liquid के लिए कैसे rise और fall हो रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया। rise और fall क्यों हो रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो तो यही है कि जो भी कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, जो भी फिजिकल फिनोमेना हम देख रहे हैं, उसे डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करें, या फिर वो डेली लाइफ में यूज़ कहाँ होते हैं, यही हमारा मेन फोकस होता है। अगर ये चीज़ें हमको समझ में आ गई तभी हमको टॉपिक में या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो कैपिलरी एक्शन हमें समझ में आ चुका है, बट अब ये कैपिलरी एक्शन डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो बीइंग अ स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज पेन। एग्जाम्पल नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में, बट पहला एग्जाम्पल हम यही लेंगे। पेन के अंदर रिफिल होती है, उस रिफिल में क्या होती है, इंक होती है, राइट? एंड व्हेन वी राइट व्हाट हैपेंस, द ink rises in that refill. So this rise in ink is nothing but the example of this capillary rise or capillary action. और examples है in biology we study about the plants, right? So ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बट एक चीज़ हमें पता है कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, यहाँ पे प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, तो वाटर जो है इनसाइड बीनीथ द सॉइल, जो भी वाटर है वो इन रूट्स को मिलता है, और ये रूट से वाटर जो है इस तरह से ऊपर जाके जो लीव्स होते हैं या फिर अपर पार्ट जो होता है प्लांट का, उस तक वो वाटर पहुंचता है। सो ये रूट से ये वाटर इस तरह से ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे ये सैप में या फिर ये स्टेम में पोर्स होते हैं। सो इन पोर्स में से ये वाटर ऊपर ऐसे पर्कुलेट होता है। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, राइज। सो दैट इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन। और थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, लैम्प। ओके, अभी तो हम लैम्प नहीं यूज़ करते, अभी हम जो है लाइट यूज़ करते हैं, बट इन एंशिएंट टाइम लैम्प यूज़ होते थे, राइट? कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से लैम्प होता था, और यहाँ पे ये एक विक होती थी जिसे हम बत्ती कहते हैं, राइट? कॉटन की। ओके, सो क्या होता था, यहाँ पे जो है एक स्टोरेज के लिए होता था जिसमें केरोसिन यूज़ करते थे, राइट? सो इस केरोसिन जो है वो इस तरह से, अब देखो यहाँ पे जब हम इसे इग्नाइट करते थे तो यहाँ पे इस तरह से फ्लेम तैयार होती है, राइट? सो ये केरोसिन की वजह से तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फ्लेम तैयार हो रही है बाय यूजिंग दिस विक मतलब ये
जो लैम्प की जो बत्ती होती है उसे विक कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो बनी होती है कॉटन की, ये विक कॉटन की होती है। दिए लगाते हैं हम घर पे, वो विक जो होती है वो भी कॉटन की होती है। कॉटन में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं। तो जब भी क्या होता है, ये जो लिक्विड है, ये जो केरोसिन है, ये पोर्स में से ऐसे एब्जॉर्ब होके इस तरह से राइज होता है और फिर ये फ्लेम चलती है, ठीक है। सो ये एक और एग्जांपल है कैपिलरी एक्शन का जो भी हम यूज़ करते हैं। और सबसे और जो एग्जांपल है जो हम रोज़ रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं वो है जब व्हेन वी यूज टू वॉश आवर फेस, जो हमारा वेट फेस होता है, हम उसे नैपकिन से या फिर टॉवल से क्या करते हैं, सोक करते हैं। हम सोक कर रहे हैं मतलब क्या, सपोज ये हैंड है, यहाँ पे वाटर है, तो हम वी यूज टू डू लाइक दिस, ओके। एंड जब हम ऐसे करते हैं तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारी स्किन पे, ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाई? बिकॉज दिस क्लोथ, दिस नैपकिन, दिस टॉवल हैज़ अ पोर्स एंड दिस वाटर ड्रॉपलेट्स गेट एब्जॉर्ब इन दैट pores, that is nothing but the capillary action. So एक और एग्जांपल मैंने बताया, और एक एग्जांपल लेते हैं, वाटरफॉल। वाटरफॉल जिसे हम कहते हैं झरना, राइट, झरना इन हिंदी वाटरफॉल। हमने देखा कि वाटरफॉल मतलब ऐसे दो हिल्स है और ये हिल्स के बीच में से ऐसे इस तरह से वाटरफॉल होता है, ओके। बेस्ट नेचुरल सिनेरियो जिसे हम देखने हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, राइट। तो ये वाटरफॉल कैसे होता है, देखो ये रॉक है, ये रॉक है। जब बारिश होती है तो ये जो वाटर है ये से वहाँ पे नीचे एब्जॉर्ब होता है और क्या होती है, ये हिल्स रॉक से बनी है। तो ये जो रॉक है, ये रॉक्स के बीच बीच में ऐसे क्रैक्स होती है जिसे हम क्रिवाइसेस कहते हैं, क्रिवाइसेस। तो क्या होता है, ये नीचे का पानी इन क्रैक्स में से ऐसे ऊपर राइज होता है, ऊपर राइज हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन इज टेकिंग प्लेस हियर बिकॉज ऑफ विच द लिक्विड beneath this rock is rising through this rocks, rising through this crevices of the rocks, and फिर यहाँ से जो है ये वाटर जो है इस तरह से, ये जो वाटर है यहाँ क्रैक्स में से राइज होके फिर इस तरह से निकलता है जिसे हम कहते हैं वाटरफॉल, ओके। सो यहाँ पे भी कैपिलरी राइज हो रहा है। सो देखो कितने अच्छे एग्जांपल देखे हमने। तो ये है फिजिक्स, है ना। सो फिजिक्स जो है, अब आप फिर से बोलोगे कि हम फिर से हमारे सब्जेक्ट को प्रेस कर रहे हैं, सो ऐसा नहीं है, ठीक है। फिजिक्स इज समथिंग, इट्स अ सब्जेक्ट दैट एक्चुअली गिव्स यू विजन टू सी एवरी एस्पेक्ट इन अ क्वाइट यूनिक वे, ओके। सो दैट इज फिजिक्स। अब देखो जब स्टार्ट में मैंने कैपिलरी एक्शन पढ़ाया तो ठीक है यार, ये फेनोमेना है, होता है, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। बट अब जब मैंने एग्जांपल्स बताए तब आपको ये जो पॉइंट है ये और नज़दीक का लगा, करीब का लगा, तो आप इसको क्या करोगे, और अच्छे से प्रिपेयर करोगे, राइट। सो यही मोटिव है कि जितना एस्पेक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को, फेनोमेना को डेली लाइफ से रिलेट करोगे उतना सब्जेक्ट आपको क्लोज लगेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट कैपिलरी एक्शन, explanation of capillary action, examples of capillary action, that is also called as a capillarity. अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा कि कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी फॉल तो हो रहा है। ये अगर कैपिलरी ट्यूब है, ये अगर लिक्विड की नॉर्मल लेवल है, सपोज इतने से लेवल राइज होगी, या फिर ये ट्यूब है, ये कुछ इस तरह से ट्यूब है, ये नॉर्मल लेवल है, तो लिक्विड की लेवल डाउन हो गई यहाँ तक, ये राइज हो गई यहाँ तक। ये वाटर का केस था, हमने देखा। ये मर्क्यूरी का केस था, ये हमने देखा। तो यहाँ पे लिक्विड लेवल इतने से राइज हो गई, यहाँ पे लिक्विड लेवल इतने से राइज हो गई। तो देखो कैपिलरी एक्शन में राइज फॉल होता है, हमें पता है। राइज फॉल क्यों होता है वो भी हमने देख लिया। अब कितने से राइज होता है और कितने से फॉल होता है ये हमें क्या करना है, मेजर करना है। दिस इज फिजिक्स वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन एवरी एस्पेक्ट। कि कैपिलरी एक्शन देख लिया, एग्जांपल्स देख लिए, कैपिलरी एक्शन क्यों होता है वो भी देख लिया। अब जब कैपिलरी एक्शन होता है तो लिक्विड की लेवल कितने हाइट से राइज होती है या फिर कितने हाइट से फॉल डाउन होती है, तो वो जो हाइट है वो हमें क्या करना है, मेजर करना है। दैट इज द नेक्स्ट एम, दैट इज टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज और द कैपिलरी फॉल। बट ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको
कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। सो एक बार फिर से डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। क्या है डेफिनेशन? कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन इज जस्ट द फिजिकल phenomena in which there is a rise or fall of a liquid inside capillary tube takes place when that capillary tube is dipped in a liquid. So this is called as a capillary action or capillarity. Examples मैंने दिए, लैम्प का एग्जाम्पल दिया, ट्री का एग्जाम्पल दिया, वाटरफॉल का एग्जाम्पल दिया, पेन का एग्जाम्पल दिया और दैट वॉशिंग ऑफ फेस लाइक दैट नैपकिन का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स ध्यान में रखो। ओके, और इस तरह से प्रिपेयर करो। ठीक है, सो चैप्टर बहुत लेंदी है तो बस एक पॉइंट बचा है, उसके बाद सरफेस टेंशन कंप्लीट, देन विल स्टार्ट हाइड्रोडायनामिक्स। ओके, सो अंटिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।